हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में प्लानिंग ऑफ बेंच टेरेस सिस्टम। तो टेरेसिंग जो है एग्रोनॉमिकल मेजर्स, सॉरी इंजीनियरिंग फिर मैकेनिकल मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन। तो उसके लिए जो है टेरेसिंग देख रहे थे। तो यहाँ प्रिंसिपल है प्लानिंग के लिए। The planning of bench terrace system is done with view to keep the earthwork minimum, to avoid longer movement of earth material, and to keep terrace boundary parallel to the contour in level bench terrace. While inward sloping bench terrace, the boundary to be on grade. तो इसमें प्लानिंग में मेन चीज़ जो है वो माइंड में रखी जाती है, वो ये है कि इसमें जो है अर्थ वर्क मिनिमम हो और जो सॉइल है उसका मूवमेंट बहुत ही मिनिमम लगे और कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में या अर्थ वर्क के कॉस्ट बहुत ही कम लगे, जिससे कि हमारा कंस्ट्रक्शन जो है फेजिबल हो इकोनॉमिकली। और जो है टेरेस की बाउंड्री उसको पैरेलल रखा जाता है कंटूर इन लेवल इन बेंच टेरेस। For alignment of bench terrace, the following points are taken into consideration. First है the field boundaries and tillage convenience should be counted for alignment. ये मेजर पोर्शन है जो कि काउंटेबल है डिजाइन में या प्लानिंग में। Then alignment should be such that at least minimum width of terrace is there for performing agricultural operation. Then third, the adjustment or deviation, if required, that should be done near to the field boundary. And fourth, all sharp or inconvenient curves should be conventionally eased out, and if some deviation is necessary, then it should be compensated from the contour line. तो ये जो चार पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखे जाते हैं प्लानिंग के लिए, कंटूर पॉइंट के लिए, सॉरी टेरेस के लिए, बेंच टेरेस के डिजाइन के लिए, प्लानिंग के लिए। तो इसमें फर्स्ट में क्या करते हैं, जो फील्ड बाउंड्रीज है और टिलेज में जो कन्वीनियंस होना चाहिए उसका उस हिसाब से अलाइनमेंट किया जाता है टेरेसिंग के लिए। देन जो मिनिमम विड्थ जो है इज अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तो जो कि मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड है फील्ड ऑपरेशन करने के लिए टेरेस में, उतना ही जो है उतना विड्थ दिया जाना चाहिए टेरेस में। Then the adjustment of deviation is required, that should be done near to the field boundary. तो अगर कुछ कम या ज़्यादा जो है विड्थ में करना है या स्पेसिफिकेशन कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो फील्ड बाउंड्री के नियर में होना चाहिए, और जो शार्प कर्व्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बट नेसेसरी है तो दिया जा सकता है और उसको जो कंपनसेट करना होता है कंटूर लाइन। Normally, the alignment of bench terrace is done for the following two conditions. When boundary of bench terrace does not follow the contour, then the earthwork will be more, and to get proper construction of terrace. Then second, when boundary of bench terrace is at the contour, then construction of bench terrace involves minimum earthwork and leveling is done only in crosswise direction. तो प्लानिंग के लिए यहाँ पे प्रोसीजर जो है इट इज परफॉर्म्ड अंडर फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में डिटरमाइन द परसेंट लैंड स्लोप एंड डेप्थ ऑफ प्रोडक्टिव सॉइल। सेकंड है फिक्स द डेप्थ ऑफ कट suitable to cultivation. Third, calculate the vertical interval based on the land slope, width of the terrace, depth of soil. Usually, it is kept greater than 2. ये तीन स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। Then the width of bench terrace decided the horizontal interval at a particular slope. It is fixed as per following condition. First है when a land has a steep slope and on which all agricultural operations have to accomplish manually and vegetable crops are desired to cultivate on them, then a narrow bench terrace of 1.5 to 3 meter width is recommended for construction. Then B है when land slope is gentle, then width should not exceed 30 meter but not be less than 10 meter for the condition when all cultivation operation are desired to perform by the bullock power. तो ये हो गया। देन कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे बेंच टेरेस के लिए। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में क्या करते हैं, टू टाइप्स के मेथड्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, मतलब टू टाइप के मेथड्स जो अडॉप्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन बाय मैनुअल लेबर, कंस्ट्रक्शन बाय मशीन्स। कंस्ट्रक्शन बाय मैनुअल लेबर को पहले देख रहे हैं यहाँ पे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरेस यूजिंग मैनुअल लेबर्स इज प्रिफर्ड स्पेशली व्हेन द सॉइल इज आइदर टू ड्राई नॉट टू वेट।
the construction is started from the top of the soil and proceeded downslope. However, if there have been used conservation measures in the field, then it should be started from the bottom of the hill and proceeded upward. But in case a temporary protection measure is essential to use before starting construction, the position of terrace should be staked in the field. देन नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन बाय मशीन्स। इसमें सिंपली जो मशीन का यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं। द बुलडोजर आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेरेस। बाय दिस मशीन द सॉइल cutting is done parallel to the and about 50 centimeter apart from the top line of stakes. The cut soil is dumped just above the bottom line and the angle blade should be used for cutting the soil to depth 40 to 50 मीटर। तो इसमें क्या करते हैं, जो बुलडोजर के यूज़ किया जाता है कटिंग के लिए, और जो कट सॉइल होता है उसको बॉटम लाइन के जस्ट ऊपर के साइड पे एक एंगल पे पुट किया जाता है। मतलब जो कंटूरिंग करते हैं प्लानिंग किए रहते हैं ऊपर हम लोगों ने देखा है उस हिसाब से, तो उस बेसिस पे जो लाइनिंग बॉटम लाइन या अप लाइन जो क्रिएट किए रहते हैं फील्ड में इमेजिनरी लाइन, तो उसके ऊपर पुट करते हैं। द फील्ड शुड बी कॉम्पैक्टेड बाय बुलडोजर। द कॉम्पैक्शन शुड बी डन बाय पासिंग द बुलडोजर फ्रॉम वन एंड टू द terrace to the other end. The passing bulldozer should always be done along the edge of the bench terrace for compacting purpose. ये हो गया कॉम्पैक्शन के लिए। ये हो गया सिंपली कंस्ट्रक्शन जो है टेरेसिंग का। देन नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थवर्क पर हेक्टेयर। फॉर लेवल बेंच टेरेस अर्थवर्क जो है ईडब्ल्यू वो दिया जाता है। ईडब्ल्यू इज इक्वल टू 1250 VI। अब VI का फॉर्मूला है WS/100। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12.50 इंटू WS अर्थवर्क फॉर लेवल बेंच टेरेस के लिए। वैसे ही फॉर इनवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरेस, इसके लिए जो है फॉर्मूला वैल्यूज पुट करने पे आएगा वो हो जाएगा EW इज इक्वल टू 12.5 W इंटू S प्लस S। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल s है। देन फॉर आउटवर्ड स्लोपिंग बेंच टेरेस के लिए EW इज इक्वल टू 12.5 W इंटू S माइनस S, जहाँ पे EW अर्थवर्क पर हेक्टेयर मीटर क्यूब में, W है विड्थ ऑफ टेरेस मीटर में, S कैपिटल S है लैंड स्लोप परसेंट में है और स्मॉल s है इनवर्ड आउटवर्ड स्लोप ऑफ बेंच टेरेस। तो S जो है वो कंप्लीट फील्ड का लैंड है, फील्ड स्लोप है, और स्मॉल s जो है वो पर्टिकुलर जो बेंच टेरेस में स्लोप दे रहे हैं वो है। तो ये हो गया। देन कॉस्ट की बात करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वॉल्यूम तो हमको मिल गया अर्थ और जो टोटल है, अब सिंपली उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट पर हेक्टेयर हमको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ बेंच टेरेस कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल दिया। कैलकुलेट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बेंच टेरेस टू बी कंस्ट्रक्टेड on 0.5 hectare land. The width of bench terrace is 3.5 meter on 30% slope. Consider the requirement of topsoil preservation. First step में जो है volume of cut soil and fill for 0.5 hectare is obtained as 719 meter cube। ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ऊपर जो फॉर्मूला यूज किया है उन सारी चीज़ों से निकालना है अपने को। देन टेक द एक्सपेक्टेड आउटपुट पर मैन डे। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ें जो है पर मैन डे एट द रेट 3.5 पर मीटर क्यूब, ये कॉस्ट हो जाएगा। टेक द वैल्यू ऑफ वेगस पर मैन डे। तो एक दिन के लिए 150 कंसिडर कर रहे हैं कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट। देन कैलकुलेट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बेंच टेरेस फॉर 0.5 हेक्टेयर लैंड। तो C इज इक्वल टू V/T इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे C है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन of bench terrace on the volume of cut and fill. T is the output per man day or per machine hour. R is the wages per man day or per hour. तो ये हो गया, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमको मिल गया 30,814।
This is the amount of construction of bench terrace only. अब calculate the cost of topsoil preservation considering 20 hours per hectare as the time required to fill the topsoil with original soil. यहाँ पे जो है प्रिजर्व भी करना रहता है टॉप सॉइल का प्रिजर्वेशन, मतलब उसको कॉम्पैक्ट करके जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो प्रिजर्वेशन है। तो 20 इंटू 50 हो गया 3000। अब कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है 30,814 प्लस 3000 तो हो गया 33,814। ये हो गया टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बेंच टेरेस। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज और दिए हुए हैं अदर कंप्यूटेशन रिलेटेड टू बेंच टेरेस सिस्टम के लिए। तो एरिया अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन AC है, फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू 100 इंटू 100 माइनस NS। बेटर एरिया टू बी प्लेस्ड बाय ग्रास AB इज इक्वल टू 100 अंडर रूट 1 प्लस N स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला जो एरिया अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ टेरेस आउटलेट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, N इज इक्वल टू L बाई 2K। AC है एरिया ऑफ कल्टीवेशन एंड अ बेटर स्लोप परसेंट में A भी बेटर एरिया टू बी प्लांटेड बाय ग्रास एंड a number of outlet per hectare and L a total length of terrace per hectare, जो कि दिया जाता है 10,000 डिवाइड बाय HI से। अब HI है BI प्लस W, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन नेक्स्ट है बेंच टेरेस सपोर्टेड बाय स्टोन वॉल। तो इसमें क्या है, स्टोन वॉल प्रोवाइड किया जा रहा है सपोर्ट के लिए बेंच टेरेस के। It is a special type of bench terrace which is constructed by filling the soil behind the stone wall constructed at the outer edge of terrace width as shown in figure। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो स्टोन वॉल क्रिएट कर रहे हैं, उसके बीच में सॉइल को फिल कर रहे हैं। ये हमारा वर्क करेगा एस बेंच टेरेस। The function of stone wall is to create a space towards upstream face of filling for filling the soil over natural ground slope and also provide stability to the outer edge of the field material। तो यहाँ से एक्स्ट्रा यूज यही होता है स्टोन वॉल सपोर्ट का कि जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सॉइल है इसको कट करके यहाँ पे फिल किया जाता है ताकि ये एक स्लोप जो नेचुरल स्लोप है उससे हट के जो इसका स्लोप मेंटेन किया जा सके और इसमें फिर अपना वर्क किया जा सके, लाइक क्रॉपिंग का या कल्टीवेशन जो है इसमें किया जा सके। द फंक्शन ऑफ स्टोन वॉल is to create space towards upstream filling soil over a natural slope and also provide the stability to the outer edge। The construction of this type of bench terrace is technically feasible for those areas where stone are available in large quantity close to the construction site and depth of soil is very poor, but for human lives the cultivation of crop is very essential। ये रिक्वायरमेंट हो जाती है या फिर डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसी चीज़ को कि यहाँ पे स्टोन लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, वहाँ पे इसका जो यूज़ है वो फेजिबल होता है और डेप्थ ऑफ सॉइल जो है वो बहुत कम है, तो इस मेथड को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो इस केस में जो है हॉरिजॉन्टल इंटरवल डिटरमाइन करना है। इट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। फर्स्ट है रिटेनिंग वॉल्स हाइट एंड लैंड स्लोप। तो इसके बेसिस पे जो HI हॉरिजॉन्टल इंटरवल दिया जाता है 100 इंटू H/S। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हाइट ऑफ स्टोन वॉल। इसके लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल टू H1 प्लस X1 प्लस H2 प्लस X2। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ X1 एंड X2 आर नॉर्मली टेकन एज 30 एंड 10। अब H1 और H2 है डेप्थ ऑफ सॉइल। H1 है यहाँ पे डेप्थ ऑफ सॉइल presumed to be lost by surface flow from the foot of the stone wall। ये हो गया H1 एंड H2 है डेप्थ ऑफ सॉइल presumed to be deposited near the wall। तो ये हो गया। तो इस टाइप के जो अदर हमारा जो मेन है बेंच टेरेस से लेवल टेरेस स्लोपिंग इनवर्ड स्लोपिंग आउटवर्ड जो है वो ही मेन है हमारे सिलेबस में, फोकस है मेन। इसके अलावा जो है वो अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे हम लोग। देन डिस्पोजल ऑफ रन ऑफ है। द रन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम ट्रीटेड लैंड कैन बी परफॉर्म by several means such as by constructing deep or narrow ditches using stones, concrete or simply by earth material।
These ditches are constructed in a straight line down the slope or diagonally down. The use of such ditches is not found suitable where cultivation is done by using machines such as tractor. तो इसके इसमें क्या करते हैं, जो डिस्पोजल ऑफ रन ऑफ मतलब एक्सेस जो वाटर है टेरेस में उसको सिंपली रिमूव करना है बाई क्रिएटिंग चैनल। और उसमें चैनल हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रास वाटर वे भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन पिच ओपन चैनल यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है बस ये ध्यान रखा जाता है कि जो स्लोप होना है चैनल में वो नॉन इरोजिव हो और जो फ्लो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो फ्लो वेलोसिटी। और इसलिए इसमें अगर नेसेसरी है तो कुछ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉप स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो एरिया लॉस्ट इन बेंच टेरेसिंग जो है ऊपर हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। और सॉरी वो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे एरिया लॉस्ट इन बेंच टेरेसिंग के लिए। केस 1 है 1:1 के स्लोप के लिए AL इज इक्वल टू S प्लस 200 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइड बाई S प्लस S बाई 100। तो ये इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो ऊपर हम लोग फॉर्मूला देखे हैं AL के लिए या एरिया लॉस्ट के लिए तो उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए थे, अगर नहीं है उस केस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1:1 स्लोप के लिए ये वाला यूज़ करना है और 0.5:1 के लिए ये वाला। AL is equal to S plus 100 divided by 200 by S plus S by 100। तो यहाँ पे सिंपल एक ही टर्म चेंज हो रहा है 100 और 200 बस। तो ये हो गया एरिया लॉस्ट इन बेंच टेरेसिंग के लिए फॉर्मूला। ये न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया गाइस, कंटिन्यू करते हैं हम मेंटेनेंस ऑफ बेंच टेरेस से नेक्स्ट क्लास में। तो गुड बाय।